So when the wind is coming from the east, it will show. अगर wind north से आ रही है तो उसमें एक लाइन ऐसे मिलेगी. अगर wind south east से आ रही है तो लाइन ऐसे मिलेगी. It means air is coming from the southeast direction. This is southeast direction. So we have to find out from which direction wind is coming and what is the speed of wind. If speed is in 5 knot, तो 5 के लिए छोटी लाइन खींचते हैं. 5 knot. If wind speed is 10 knot, 10 के लिए लंबी खींचते हैं. 20 knot, फिर दूसरी लाइन. 30 knot और भी. 40, 45, 5 के लिए आधी लाइन खींचते हैं. If wind is coming from at the speed of say east, अगर ऐसा है तो wind किस डायरेक्शन से आ रही है? वेस्ट से. इट मीन्स दिस इज वेस्टर्ली. और 50 नॉट, 50 नॉट का मतलब है इट इज कंप्लीटली स्टेटेड. और 50 से 60 नॉट हो जाए तो फिर ऐसे हो जाएगा 10 नॉट एंड हो जाए. सो दिस इज ऑल द स्पीड एंड द डायरेक्शन. एवरी प्लेस द स्पीड ऑफ द विंड एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड. You have to carefully read the index or the symbols on the weather map. Reading the symbol is very very important for all of you. मैं अभी आपको बताऊंगा. So this is number 3. Number 4 is it is cloud cover. Cloud cover is again very important. Cloud cover determine whether the rainy conditions will take place or not. So it is generally, it means if when the circle is like this, there is no cloud cover. No cloud cover. If it is circle is like this and there is a straight line, only 1/8 cloud cover is there. CC means cloud cover. If it is another symbol is here, it is like this, so it means 1/4 cloud cover. 1/4 cloud cover. And if it is there like this is half. आधा हो गया. It means half of the cloud cover. And simultaneously, if it is like this and it is like this, it is 3/4 cloud cover. And if sometimes it is like this, complete उसमें circle में it is complete black. If it is complete black and this black is here, so complete 8/8, because cloud cover is measured in 8 unit. How it is divided by 8. 8 का कौन सा हिस्सा? If it is 8, 1/8, 1/4 means half or 2/8. 8 भागों में क्लाउड को बांटते हैं तो कितना पार्ट है? So 8/8 means complete cloud cover. C complete cloud cover. Sometimes we cannot collect data about the cloud cover. Data, क्योंकि if the fog is there, we may not determine. If mist is there sometimes, so it is written here, cross लगाते हैं. Data obscured, data not available. Data obscured. So this is like about the cloud cover. How much? Cloud cover कितना cloud cover है? कई बार स्काई साफ दिखाई देता. There is no cloud cover. कलर से जैसे इसमें अच्छा आपने वेदर मैप ही नहीं देखा है. अब लेट आए. This is the weather map. Every day, daily weather map collected by the weather department. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 8:30 बजे जितने देश के हजारों स्टेशन हैं सबका डेटा निकाल के वो इसमें डिस्प्ले करते हैं. आज के दिन ये जो सर्किल है ना, कई जगह इसमें आप ध्यान से देखेंगे, कई जगह एकदम ये सर्किल खाली है, इसका मतलब क्लाउड कवर नहीं है. कई जगह देखेंगे सर्किल पे पूरे ब्लैक हो रखे हैं. इट मीन्स 100% क्लाउड कवर है. 8/8 100%. कई जगह आपको क्रॉस भी मिलेगा. इट मीन्स डेटा इज नॉट अवेलेबल, मे बी डिफरेंट रीजन.
So this is one of the parameter about the cloud cover. Then the rainy condition. Then another is number 5th is weather conditions are rain. Rain is generally उसके साथ में छोटा सा कंप्लीट सर्कल डॉट बना देते हैं, बोल्ड डॉट, और उसको कंप्लीट कर देते हैं रेन है. इट इज द रीजन. अगर रेन के अलावा ड्रिजलिंग है तो इट इज लाइक कोमा ड्रिजलिंग. एंड अपार्ट इफ ड्रिजलिंग एंड द रेन, अगर शावर है, शावर का एक सिंबल है, शावर का सिंबल ऐसे ट्रायंगल है, टॉप ऑफ द ट्रायंगल इज फ्लैट. अगर इसमें हेल्स आ जाए, ओले भी गिरे, तो हम इसको फिर उल्टा कर देते हैं ट्रायंगल, बेस नीचे आ जाएगा. अगर कहीं ऐसा ट्रायंगल है, इट मीन्स यहाँ ओले भी गिरे. ऐसा है तो शावर है, कोमा है, ड्रिजलिंग है. ओनली सर्कल है, रेन है. रेन, ड्रिजलिंग, शावर, हेल्स. Okay. Hail, you know, the come with the snow, the balls of the ice comes with the water, because temperature is in -30, -40 degree, and when the condensation takes place, it is in frozen state sometimes, and sometimes the suspension gets disturbed and the rain takes place because of the condensation. So it is hail, shower and drizzling. Drizzling is like हल्की हल्की बारिश हो जाए, आप you can walk, आप उसमें चल सकते हो. हिंदी में डीसी पढ़ना बोलते हैं. हिंदी में डीसी पढ़ना बोलते हैं. डीसी जोर से बोल रहे थे. डीसी पढ़ना, डीसी पढ़ना, डीसी पढ़ना. डीसी पढ़ना हिंदी में बोलते हैं सर, यूपी में. ओके, यूपी में हिंदी में डीसी पढ़ना. डीसी पढ़ना सर. डीसी. ओके, डीसी पढ़ना. हल्की हल्की ओके, अवधि में बता रहे हैं आप, यानी कि भोजपुरी में. सर मतलब भारी भरकम शब्द है. ओके, कोई बात नहीं बेटे. रीजनल डायलेक्ट है. फुहार, हल्की फुहार पड़े, सो दैट इज फुहार मींस ड्रिजलिंग. फुहार, हल्की हल्की ड्रिजलिंग. और शावर थोड़ा सा फुहार से ज्यादा, और रेन तो फिर एकदम बारिश हो जाए. सो इट इज द माइन्यूट डिफरेंस इन दिस. समटाइम्स वी हैव lightning is also there. अगर बिजली कड़के तो हम एक सिंबल दे देते हैं ऐसा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल. अगर बिजली कड़कती है कहीं तो एक सिंबल है, और बिजली कड़कने के बाद सर ये लाइटनिंग फिफ्थ एलिमेंट, सॉरी सिक्स्थ एलिमेंट है इस नहीं, रेन के अलावा फिफ्थ. ये थंडर वाली जब स्टेज आ जाती है ना, डिस्टर्बेंस वाली, सिक्स्थ डिस्टर्बेंस. वेदर डिस्टर्बेंसेस में थंडर, लाइटनिंग आ जाए. अगर मैं थंडर कहूं, थंडर जैसा हो जाए तो टी हो जाएगा. और अगर मैं थंडर स्टॉर्म बता दूं, थंडरस्टॉर्म, देखिए टी में भी लाइटनिंग भी ऐड होगी, थंडर भी ऐड हो गया, और उसमें लाइटनिंग भी ऐड हो गई. स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, बिजली कड़की जोर से. समटाइम्स इसी में कई बार ये तो डिस्टर्बेंसेस हैं. हेज कई बार होता है, जैसे आज है हेज. कई बार कुहासा जिसको बोल देते हैं, एक रेत का तूफान आता है, रेतीला तूफान, डस्ट स्टॉर्म, जिसमें डस्ट स्टॉर्म. कई बार रेत की आंधी देखिए, जिसमें रेत बहुत ज्यादा होता है, काली आंधी आ जाती है, काली घटा छा जाती है, हवा के साथ
सो दैट इज उसके लिए एक सिंबल है ऐसा घूमता है ना गोल गोल रेत, तो इसमें डस्ट का सिंबल है, सो इट इज वन अनदर फीचर. Simultaneously there is one more feature, fog. Fog के लिए 3 बार लाइन इकट्ठी खींच देते हैं. Sir, haze वगैरह सब disturbance नहीं है? Yeah, no, fog is not disturbance. Fog is foggy condition. Weather की different seasonal parameters है. एक seasonal parameter है, कई बार विंटर में हो जाता है, कई बार बारिश होने के बाद एयर में मॉइस्चर बढ़ जाता है. अगर आज रेन हुई है तो कल फॉग होने की संभावना है. अगर टेम्परेचर कम है तो इफ द डे एंड नाइट टेम्परेचर इज हाई एट नाइट टेम्परेचर इज लो, तो दिन में इवेपोरेशन होगा तो रात को फॉग हो जाएगा. तो इसके साथ ही एक मिस्ट भी होता है. मिस्ट में 2 लाइन होती है. सो दीज आर द वेदर पैरामीटर्स, हेज, फॉग एंड मिस्ट. सो देखिए, सॉरी, इसको डस्ट स्टॉर्म नहीं कहेंगे. डस्ट स्टॉर्म का दूसरा सिंबल है. सॉरी, मैं इसको डस्ट व्हिर्ल बोलेंगे. कई बार आप देखते हो कि एक जगह हवा ऐसे घूमती रहती है और बहुत ऊपर तक एक फनल बन जाता है और हवा ऐसे घूमती रहती है, एक सर्कल बना लेती है. चक्र, लोकल छोटे छोटे आंधी तूफान ऐसे घूमती हुई हवा, तो उसके लिए डस्ट व्हिर्ल बोलेंगे इसको. लेकिन डस्ट स्टॉर्म जो आता है ना, डस्ट स्टॉर्म, तो डस्ट स्टॉर्म का सिंबल एस का मतलब स्टॉर्म और डस्ट का मतलब है एरो दे देते हैं. डस्ट स्टॉर्म. Sir, sandstorm भी हो सकता है. सैंड स्टॉर्म. डस्ट एंड सैंड इज द सेम. डस्ट मतलब ये सैंड से ही एस इसलिए बनाया कि वो रेत होता है. रेत में सिल्ट भी हो सकता है, रेत में क्ले भी हो सकता है. डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड, सैंडी पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, minute particles. So different types of sand. So these are the different symbols, and on the basis of these parameters, every day we observe the weather conditions of every weather station on daily basis about all the stations of the country. You will find here the different conditions of different conditions in the coastal region. If it is in Andaman Nicobar, because in the coastal and continental region you will find different parameters.